حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، معزز ناظرین، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ درس میں ہم نے 14ویں سبق کا آدھا حصہ سماعت کیا تھا، جس میں عربی سے اردو کا ترجمہ اور عربی کے سوالات، عربی میں جوابات، اسئلہ کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم مزید اگلے آخری سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو اردو سے عربی کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، یعنی اردو کے جملے ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ہمیں کرنا ہے۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس درس میں مرکب اضافی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا۔ پھر ایک مرتبہ میں عرض کرتا ہوں کہ مرکب جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زائد جملوں سے بنتا ہے، اور مرکب کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک مفید، ایک غیر مفید۔ مفید جو ہوتا ہے وہ مکمل جملے کو کہتے ہیں، اور مرکب ناقص جو غیر مفید ہوتا ہے اس کی مزید 4 قسمیں بنتی ہیں، جو مرکب اضافی، توصیفی، مرکب بنائی اور مرکب معنی صرف۔ اور اس میں سے ہم جو ایکسرسائز میں جو ہماری ایکسرسائز آئی ہے، اس کے اندر جس کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ جس میں پہلے جز کی نسبت دوسرے جز کی طرف بطور اضافت کے کی گئی ہو، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مضاف پر الف لام بھی نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اکرام الضیوفی، اکرام یہ مضاف ہے، الضیوفی یہ مضاف الیہ ہے۔ اکرام الضیوف یعنی مہمانوں کی تعظیم۔ اب آئیے اردو سے عربی کا ترجمہ ہم اسی نہج پہ کرتے ہیں۔ اس کا گھر، ترجمو باللغت العربیتی، کہ عربی زبان میں ترجمہ کرو، من الاردویتی، اردو زبان کا۔ اب اس کا گھر ہے تو گھر کو کہتے ہیں، سب سے پہلے گھر کہتے ہیں بیتن، بیتن گھر، اس کا گھر، اس کا یعنی ہو ضمیر، بیتہ اس کا گھر، اس کا گھوڑا، فرسہ اس کا گھوڑا، اس کا دوست، صدیق صدیقہ، میرا پالنے والا، ربی، میرا رب، پالنے والے کو رب کہتے ہیں، رب، میرا پالنے والا ربی، میرا گلاب، وردی، میرا کنڈا، عسیسی، تیرا طوطا، ببغاؤک، تیرا باغ، حدیقتک، تیرا پودا، غرسک، تمہارا دین کیا ہے، ما دینک، کیا تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رسول، رسولک، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولک، میرا رب مہربان ہے، ربی رحیم، میرا گھر، تیرا، آپ کا گھر، میرا گھر، بیتی، آپ کا گھر، بیتک۔ جملے دیکھیے، اس کا گھر، بیتہ، اس کا گھوڑا، فرسہ، اس کا دوست، صدیقہ، میرا پالنے والا ربی، میرا گلاب، وردی، میرا کنڈا، عسیسی، تیرا طوطا، ببغاؤک، تیرا باغ، حدیقتک، تیرا پودا، غرسک، تمہارا دین کیا ہے، ما دینک، کیا تمہارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولک، میرا رب مہربان ہے، ربی رحیم،
मेरा घर आपका घर, बैती बैतुका। ये तमाम में ये जो पहला जुमला है वो आपको मुजाफ दिख रहा है, मुजाफ है जो इसम है, और जो ज़मीर जिस मकाम पर है सेकंड प्लेस में जो ज़मीर है जो गायब की होने दो या मुतकल्लिम की होने दो या मुखातब की होने दो, ये तमाम ज़मीर हु या काफ ये पूरे मुजाफ इलैहि हैं। इसके बाद मजीद जुमले हैं, इसके बाद उसका तर्जुमा हम करेंगे। मेरे बाग में मेवा है। मेरे बाग में मेवा है। मेरे बाग में, मे के लिए फी लेकर आते हैं हरफ जर। मेरा बाग, हदीक़ती, फी हदीक़ती, मेवा है फाकिहतुन। और फूल भी, और के माने वज़्ज़हरु ऐज़न। तुम्हारे वालिद कैसे हैं? तुम्हारे वालिद कैसे हैं? कैफ़, कैफ़ वालिदुका। और कहाँ है? वो ऐना, कैफ़ वालिदुका व ऐना। तुम्हारा पालने वाला कौन है? तुम्हारा पालने वाला, पालने वाले को रब कहते हैं। मन कौन, मन रब्बुका। मेरा पालने वाला अल्लाह है। रब्बी अल्लाहु, वो तुम्हारा भी रब है। वो तुम्हारा भी रब है। वो रब्बुका ऐज़न, ये मेरा ईमान है। ये जुमले देख लीजिए। मेरे बाग में मेवा है, फी हदीक़ती फाकिहतुन, और फूल भी, वज़्ज़हरु ऐज़न। तुम्हारे वालिद कैसे हैं? कैफ़ वालिदुका, और कहाँ है? वो ऐना। तुम्हारा पालने वाला कौन है? मन रब्बुका, ये बापे पेश है। मन रब्बुका, मेरा पालने वाला अल्लाह है। रब्बी अल्लाहु, वो तुम्हारा भी रब है। हुआ, वो हुआ रब्बुका ऐज़न, हुआ रब्बुका ऐज़न, वो तुम्हारा भी रब है। और मजीद 2-3 जुमले हैं। ये मेरा ईमान है। ये मेरा ईमान है। ये को कहते हैं अरबी में हाजा। मेरा ईमान, हाजा ईमानी। इस्लाम मेरा दीन है। अल इस्लामु दीनी। और वो हक है, बातिल नहीं। और वो हक है, वह हुआ हक्कुन, बातिल नहीं,
ला बातिल, ये मेरा ईमान है, हाजा ईमानी, इस्लाम मेरा दीन है, अल इस्लामु दीनी, और वो हक है, वह हुआ हक़ुन, बातिल नहीं, ला बातिलुन। ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई। आइए मुरक्कब इजाफी की तारीफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको आप याद कर लीजिए ताकि मज़ीद आगे हमें मुरक्कब इजाफी समझने में आसानी हो। और तारीफ भी आसान है, मुश्किल नहीं। कि मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? मुरक्कब इजाफी की तारीफ, मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें पहले जुज़ की निस्बत इजाफत के तौर पर दूसरे जुज़ की तरफ की गई हो, दूसरे जुज़ की तरफ की गई हो। जैसे इकरामुज़्ज़ुयूफ़, बैतुल्लाही, मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें पहले जुज़ की निस्बत दूसरे जुज़ की तरफ इजाफत के तौर पर की गई, यानी पहले जुज़ की निस्बत इजाफत के तौर पर दूसरे जुज़ की तरफ की गई हो, मुरक्कब इजाफी कहलाता है। मुरक्कब इजाफी में पहले मुजाफ होता है, जैसे इकरामुज़्ज़ुयूफ़, ये इकराम क्या है? ये मुजाफ है, और ज़ुयूफ़ क्या है? ये मुजाफ इलैह है। जैसे दूसरी मिसाल है बैतुन, बैतुन क्या है? ये मुजाफ है, और अल्लाह ही जो है ये मुजाफ इलैह है। आप देखेंगे मुजाफ इलैह को ज़ेर आ रहा है, देखिए मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इकरामुज़्ज़ुयूफ़ का माने है मेहमानों की ताज़ीम करने वाला। बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। जैसे मैं इससे पहले भी अर्ज किया था कि मुजाफ और मुजाफ इलैह के जुमलों में उमूमन का की का तर्जुमा आता है। और मुरक्कब इजाफी का हुक्म क्या है वो भी मैं लिखता हूँ। तो देखिए मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं? मुरक्कब इजाफी वो मुरक्कब है जिसमें पहले जुज़ की निस्बत इजाफत के तौर पर दूसरे जुज़ की तरफ की गई हो। पहला जुज़ है इकराम, इसकी निस्बत इजाफत के तरफ किस तरह करें आप? ज़ुयूफ़ की तरफ, यानी मेहमानों की ताज़ीम। बैत घर कहते हैं, नॉर्मल कोई भी घर हो सकता है, लेकिन इस घर की निस्बत किधर करें आप? अल्लाह की तरफ से। क्या बनाओ? बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। इसी तरह मजीद इसका हुक्म क्या है वो भी लिखता हूं। मुरक्कब इजाफी का हुक्म, मुरक्कब इजाफी के पहले जुज़ को मुजाफ और दूसरे जुज़ को मुजाफ इलैह कहते हैं। एक पॉइंट। दूसरा, मुजाफ पर कसरा यानी जेर और तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश, कसरा और तनवीन नहीं आते, और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। मजरूर यानी हमेशा जेर वाली हालत में होता है। और तीसरा है इजाफत के वक्त मुजाफ से तस्निया यानी डुअल, तस्निया का मतलब डुअल, तस्निया और जमा यानी प्लूरल, जमा का नून गिर जाता है। जैसे
मुस्लिमूना है, मुस्लिमूना है। अब इसकी इजाफत करें तो क्या होंगे? जैसे मिसाल है मुस्लिमुल हिंद, मुस्लिमुल हिंदी, हिंदुस्तान के मुसलमान। उसी तरह तस्निया की मिसाल देखिए, तस्निया है किताबानी, दो किताबें। इसकी इजाफत करेंगे तो क्या होगा तर्जुमा? किताबा ज़ैदिन, ज़ैद की दो किताबें। तो नून जो है वो यहाँ पे इजाफत के वक्त गिर जाता है। ज़ैद की दो किताबें, तर्जुमा करेंगे यहाँ पर भारत के मुसलमान, ज़ैद की दो किताबें। हुक्म क्या है मुरक्कब इजाफी का? कि मुरक्कब इजाफी के पहले जुज़ को मुज़ाफ और दूसरे जुज़ को मुज़ाफ इलैह कहते हैं। मुज़ाफ पर कसरा और तनवीन नहीं आते, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। इजाफत के वक्त मुज़ाफ से और जमा का नून गिर जाता है, यानी मुज़ाफ से तस्निया और जमा का नून गिर जाता है। जैसे मुस्लिमूना से मुस्लिमुल हिंदी, किताबानी से किताबा ज़ैदिन वगैरह। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ी सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।